everyone. This is Amna. This is the moderator for this webinar on the topic of opportunities for economic empowerment of women. I welcome you all to this webinar of the YGABF, and I hope that you all will get to learn a lot from our esteemed guest today. Before we start, I'd like to introduce Fatma Asper, who is the co-founder and director of YGA Business Forum, to please come and introduce the forum and lead the webinar forward. Thank you, Amna. Assalamu alaikum, everyone. This is Fatima. Before I introduce the business forum, I would like to tell a bit about the Youth General Assembly itself. Youth General Assembly is an autonomous assembly that has been formed in order to provide a credible platform that instigates a true sense of policy making and strategy making, equitable administration and non-customary legislative, public speaking and social issues by empowering enthusiasm in youth for being the future ambassadors of Pakistan. The aim is to inculcate convening and confronting qualities amongst the youth to expand their perspective and knowledge regarding true democracy and parliamentary politics. YGA Business Forum is one of the latest initiatives of YGA, and it has the honor of being Pakistan's first youth-led business forum. Today, we are excited to be conducting this webinar on the topic of opportunities for economic empowerment of women. And we have an amazing guest with us today. I would like Amna to introduce the guest, please. Well, we have Ms. Tabinda Islam with us today, and she's the lead trainer entrepreneurship at Rifa International University, project lead global incubation network at Argentech, and the project director at Enablers. Before we start, I would like to mention a fact for our viewers that is going to be the heart of this whole discussion today. And the fact is that recently Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry President Irfan Iqbal called for promotion of women entrepreneurship in a delegation in Rawalpindi Women's Chamber and underlined the fact that women constituted 52% of the country's population. Consequently, a significant economic cost occurred by neglecting their empowerment and participation in all these facts just point in a direction that economic empowerment of women is really important and that we should work for it. And now let's hear from our guest about her views on how do women empowerment benefit our economy. Assalamualaikum ji. Thank you so very much, Amna and Fatma. Congratulations for such good initiatives that you have taken so far. So first of all, I always encourage all the women who are watching this, or in fact, the women who will be watching this series. तो उसमें ये होगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. सो व्हाट वी नीड टू डू बीइंग अ होल कम्युनिटी कि हमें उनको इनेबल करना है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट इन द मार्केट. तो वो हम लोग अभी इंशाल्लाह इसी सेशन में डिस्कस करेंगे. सिंस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज सजेस्टेड कि पाकिस्तानी खवातीन जब तक मर्दों पे खाना पकाना काम नहीं करेंगी तब तक तो आप पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी के बारे में सोच भी नहीं सकते. तो हिज वर्ड्स वर डिफरेंट फ्रॉम दिस बट द कॉन्टेक्स्ट वाज सेम. Okay, thank you for your answer. And I'd like to know your views about how do you think that female empowerment promote economic development in the society? So there are certain things that a woman can do. In fact, the society today is more aware because of the digital transformation and the gadgets that are available in their hands all the time. So they are more tech savvy now, and they are more close to the opportunities that are available in the market. So खवातीन के पास बहुत सी opportunities already exist करती हैं. For example, they are born to do multitasking, I think, and they do it very well, and they manage their households and work together with a very मतलब आप कर ले के बड़ी कन्वीनियंस से और बड़ी आसानी से वो कर लेती हैं. ये सारी चीज़ें उनके लिए डिफिकल्ट होती हैं चीज़ों को इकट्ठा करना. तो अभी ये है कि अगर हम अभी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दे जस्ट 5 बिजनेसेस जो कि वो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं. और वो जीरो इन्वेस्टमेंट से मतलब पैसे की जरूरत नहीं है उसमें. बड़ी खवातीन हमारी रुक जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं पैसा नहीं है तो मैं काम नहीं करती अपना. नहीं, काम वो कर सकती हैं, अपने बिजनेसेस को कर सकती हैं. 5 बिजनेस है वो 5 बिजनेसेस कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला जो है वो तो होम ट्यूशन है. देखिए most of the women they have passed their matriculation और उसके बाद वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में बड़ी प्रोफिशिएंटली
अपने करियर को आगे लेके चल रही होती हैं, लेकिन वो एक सब्जेक्ट जो उनको बड़ा पसंद होता है, चाहे वो अंग्रेजी है, चाहे वो मैथ है, उर्दू है, वो उसी से रेलिवेंट होम ट्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं. इट्स एन एक्सेलेंट बिजनेस मॉडल वेयर यू कैन टेक द एडवांस फ्रॉम द स्टूडेंट्स फर्स्ट, और उसके बाद आप पढ़ाना शुरू करते हैं. So you don't actually need a initial investment to start this learning center or maybe the tuition center. This can be one of the business. सेकेंड बिजनेस जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो आप होम किचन स्टार्ट कर सकते हैं. So you have all the utensils available at your home. You have everything at home. So what you have to do is to just take the orders from your mobile phone जो already आपके पास है, और आप उससे होम कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट. आप होम किचन का काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं. जो तीसरा काम आप कर सकते हैं वो है सेलिंग ऑफ क्लोथ. तो आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में बड़े इस तरह के लोग होते हैं जिसके पास कपड़े होते हैं और वो कपड़े किसी को देना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती कि इतने कीमती कपड़े किसको दे. एंड व्हाट दे एक्चुअली वांट इज के, और व्हाट दे कैन डू कि वो उन कपड़ों को रीसेल कर सकते हैं. तो आप उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाइए और एक कम्युनिटी स्टैब्लिश कर ले, चाहे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना ले, चाहे फेसबुक पे कम्युनिटी ग्रुप बना ले, और उसके अंदर जो है वो आप रीसेलिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आए. उससे दो तरह के बेनिफिट्स होंगे. एक तो सोसाइटी में आपकी जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट नहीं होने देगा ये चीज, रिसाइकलिंग होगी क्लोथ की. और जो दूसरी चीज है वो ये कि इकोनॉमिकली लोगों को आप बेनिफिट दे रहे होंगे और उनकी पॉकेट के ऊपर जो ब्रांडेड और महंगे कपड़ों का भूत सवार होता है वो आप कम कीमत में उनको दे सकेंगे. जो चौथा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं बेबी डे केयर सेंटर्स का. यू ऑल हैव वन गुड स्पेस एट योर होम जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं. तो उस ड्राइंग रूम का आपको तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक आपके घर कोई मेहमान नहीं आता. तो तब तक उसको फायदा उठाइए उससे और मेक इट अ डे केयर सेंटर, बेबी केयर सेंटर बना लीजिए. आजकल उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज 32% ऑफ द women in Pakistan they are working for the small businesses or maybe they are working for the job. तो उनको आप फैसिलिटेट कीजिए. तो इसमें भी आप इकोनॉमिकली भी फायदा उठा सकते हैं इससे और सोशली भी फायदा उठा सकते हैं बाय हेल्पिंग देम कि वो अपने गोल्स को अचीव करें आपकी हेल्प के साथ. और इसमें भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए प्राइमरीली. और जो पांचवा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकती हैं वो तो सबसे आसान है, वो है मैरिज मैट्रिमोनियल सर्विसेज. तो मैट्रिमोनियल सर्विसेज आप स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द नीश दैट हैज टू बी टारगेटेड इन अ वेरी राइट वे. तो मेनी ऑफ द वुमेन आई नो कि वो काम कर रही हैं और वो व्हाट्सएप पे डिफरेंट उन्होंने ग्रुप्स बनाए होते हैं, मैट्रिमोनियल ग्रुप्स, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. सो इट डोंट नीड एनी मनी. एंड देयर सर्टेन अदर बिजनेसेस, हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस जिनको आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, सिर्फ आपने अपनी आंखें और कान खुले रखें. Thank you so much about your informative and enlightening words, and you've definitely given us some great ideas. And now I'd like to know that since we're on the topic of women empowerment, what role do you think men can play to create opportunities for women empowerment? तो ऑलरेडी मैन आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनफैक्ट अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेचारे कंप्रोमाइज करने पे इतना ज्यादा उतर आए कि वो सेक्रीफाइस पे कन्वर्ट हो रही है कंप्रोमाइज पे. So they're sacrificing a lot of time that the women should give at home to the kids in fact, and they are supporting. So most of the men पाकिस्तान में वो हेल्प कर रहे हैं आप, और वो अपने कीमती वक्त से अपने काम से आते हैं, उसके बाद वो इक्वल सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं. एंड इफ दे नॉट डूइंग इट सो दे हैव टू डू इट. क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड नहीं बनेंगे, एक दूसरे के लिए सपोर्ट नहीं क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है. बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सुन्ना. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि वो अपने काम खुद करते थे. और आज हम पानी उठा के नहीं पी सकते, हम अपने जूते खुद नहीं निकाल सकते, हम अपने कपड़े खुद नहीं निकाल सकते. वी आर नॉट हैंडीकैप पीपल, वी आर अ ह्यूमन बीइंग जिसे अपने काम सारे खुद करने चाहिए. एंड वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स दैट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को एक अच्छी राह दिखाई है, जिस राह पे अगर हम चलेंगे तो हम दुनिया और आखिरत दोनों को संवारेंगे. Yes, that I think I definitely agree with you on that. And so there's another important question that I think must be like discussed, that what institutional and societal changes need to be made about the barriers that are locking women, the women of the more backward regions and areas that are not like जिनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, and they don't have those facilities वगैरह. तो सबसे पहले तो मैसेज अर्बन कम्युनिटी के लिए, अर्बन
जो लोग हैं उनके लिए है कि उनको अपने जो फेदर्स हैं वो रूरल मार्केट में लेके जाने चाहिए, और इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द पीपल और उनके ट्रस्ट को ब्रीच करने की बजाय, उनको धोखा देने की बजाय, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ द वुमेन इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान कि वो बेचारियां यहाँ से काम कर देती हैं, जो शहर से खवातीन जाती हैं उनके लिए, और बड़े बड़े उनको सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं, खवातीन ही दिखाती हैं, और उसके बाद उनको पीछे मुड़ के नहीं देखती वो, और काम भी करवा लेती हैं। तो आई थिंक उनका वो जो ट्रस्ट लेवल है वो उतना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, और उसको सस्टेन करने में भी इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हमें वो जो कमर्शियल माइंडसेट यहाँ से शहरी हम लेके जाते हैं वहाँ पे रूरल मार्केट में, चाहे वो सिंध है, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज है पाकिस्तान के, हमें एथिकली भी और मॉरली भी हम लोगों को उनका साथ देना है, और उनके लिए जो नए होराइजन और नई अपॉर्चुनिटीज हम ओपन कर रहे हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट अप टू द लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी रेट पे है कि ग्रेड 5 तक उनकी एजुकेशन वो भी नहीं है, वो उससे भी कम पढ़ी लिखी हैं। तो अगर उनको पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उनको स्किल है, कोई कोई बहुत अच्छा कपड़ा बुन लेती है, कोई कढ़ाई अच्छी कर लेती है, बेसिक स्किल्स है उनके पास, तो आप स्किल्स को यूज कीजिए और फिट नहीं देंगे Ma'am, तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। yeah, now you're audible. You just lost your voice for a second. जी जी। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू, कि हम उनके पास जाएं और उनके पास जाकर उनको अपॉर्चुनिटीज दें और उन्हें ट्रस्ट से ना खेलें, उनको नुकसान ना पहुंचाएं, ना उनको डिसहार्टन करें, क्योंकि उनकी जो जिंदगी है तो दे लिव वेरी हैप्पीली। वो आई एम सो सॉरी टू से दिस वर्ड, बट वो डंगरों की तरह काम करते हैं, सुबह फजर से लेके इशा तक वो खवातीन एंड तक हंसती रहती हैं, वो खुश रहती हैं। एंड आई ऑलवेज वंडर बाय सीइंग देम कि दे हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, दे आर स्किल्ड, दे वांट मोर मोर टू डू। ठीक है, लेकिन हम लोग शायद उनको प्रॉपर्ली डायरेक्शन नहीं दे सकते या उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकते, जिनको पता है। In fact, इस In point पे fact, इस point पे मेरे जहन में एक मेरे बात जहन आई. में एक बात आई. I think my voice I is think my repeating. voice is repeating. नो इट्स ओके। So So I was I was saying that saying that when I entered when I university, entered तो university, मैंने तो नोटिस की मैंने कि notice की कि इतने अरसे में अपने सिर्फ अर्से यूनिवर्सिटी में नहीं, यूनिवर्सिटी सिर्फ कॉलेज सिर्फ में, कॉलेज स्कूल में, में I noticed स्कूल में that I noticed that the girls are brought up in a way कि शायद वो competitive है ही नहीं. क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, बट आई सॉ देम गेटिंग ऑफ ट्रैक क्योंकि उनके ब्रॉटअप इस तरह के हैं दैट दे आर नॉट कंसिडर्ड द वन हु नीड्स टू अर्न. And I think that it is a very huge barrier क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी, I only have like I guess 8 to 10 girls in my class. It's a big class and the majority is men, and it's okay. I don't mind that. But the girls there are very hardworking. But I feel like that there is a lack of purpose. और ये पर्पस हमारी सोसाइटी से आता है. अभी आमना ने भी क्वेश्चन किया कि हम सोसाइटी के वो बैरियर्स कैसे बदलें. बैकवर्ड एरियाज में एज यू मैंशनड के बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन है एंड दे आर हैप्पी डूइंग दैट वर्क, बट दे डोंट नो कि शायद वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है, उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है. लेकिन जब हम इतने हाई एजुकेशन लेवल पे आ जाते हैं, हमें यहाँ पर भी वही माइंडसेट देखने को मिलता है दैट वुमेन आर स्टडीइंग एंड at the end of the day they are not getting a job, they're not even wanting to do a job. So how do you think that universities के इस तरह के हायर लेवल एजुकेशन के सिस्टम्स में हम कोई इस तरह की चीज इनकलकेट करें कि लड़कियों को समझ आए कि if we are studying we have to also apply that and not waste it? तो हायर एजुकेशन में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। आई नो मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मैनी ऑफ द कॉलेज, मैनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान करंटली वर्किंग हार्ड कि वो प्रमोट करें वुमेन अपॉर्चुनिटीज को और वुमेन लेड स्टार्टअप्स को भी इम्पैक्ट बहुत। तो वो लोग अपनी कैपेसिटी पे तो कर रहे हैं। व्हाट एक्चुअली हैज टू बी डन इज कि खवातीन ही खवातीन को फैसिलिटेट करें, ये नहीं हो रहा। ठीक है, दैट इज वन ऑफ द मेजर बैरियर कि वो ही एक दूसरे के लिए कंपटीशन बन के रह गई है। तो वो कंपटीशन आपस में तो ना करें, कम से कम एक दूसरे के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और आई ऑलवेज से कि अगर पाकिस्तान में खवातीन के पास अपॉर्चुनिटीज है और वो उसको यूज नहीं कर रही, तो इसका मतलब कि वो जो एक बात कहते हैं ना कि जो अंधेरा है वो अंधेरा नहीं है, वो रोशनी की एब्सेंस है। तो रोशनी की एब्सेंस को आप अंधेरा बोलते हैं। सिमिलरली
वो खवातीन जितनी मर्जी कॉम्पिटेंट है, जो मर्जी हो, अगर वो कुछ नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ द पीपल एंड गुड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो हमें वो चीज़ को नहीं होने देना, हमें उनको उस चीज़ से बाहर निकालना है, एंड वी हैव टू एक्चुअली वर्क फॉर दैट एंड मेनी कंपनीज। I cannot name due to the present constraints here, but many of the institutions, universities, or बड़े brands, corporate brands are working on women empowerment of Pakistan. प्रॉब्लम आती है दरमियान में, जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो ब्रिज होते हैं, और पाकिस्तान में एक बड़ा ये कॉमन चल रही है चीज़ आजकल, एंड दैट इज द हांचा सिस्टम उसको बोलते हैं। वो दरमियान में मिडिल पार्टी के अपने स्टेक्स होते हैं, वो जो अपनी परसेंटेज रख रहे होते हैं ना उसके अंदर, और खवातीन भी इसके अंदर इंगेज है प्रॉपर, तो वो ना रखिए, क्योंकि आप फैसिलिटेट करने के लिए आगे गए हैं, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी अपनी शक्ल दिखानी है और उसके सामने से हाथ खोला है आपने। प्लीज लोगों के लिए आसानियाँ क्रिएट करें, उनके लिए हर्डल्स क्रिएट ना करें, उनकी मुश्किलें क्रिएट ना करें। ये तो पब्लिक सर्विस मैसेज हो गया मेरी तरफ से। एंड अगर कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देना अपनी यूथ को कि हाउ कैन दे अचीव एवरीथिंग, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, यूथ में पाकिस्तान में खवातीन लड़के लड़कियां दोनों के लिए मैसेज है कि जज्बाती ना हो, अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें, न्यूट्रलाइज रखें, सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, परसिस्टेंट रहें, जो चीज़ करें उस पर परसिस्टेंस से काम लें, और कंसिस्टेंट। ये तीन चीज़ें हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंस। एंड आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर ये तीनों चीज़ों को आप अपनी पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट का पार्ट बना लें, तो यू कैन बीट द सक्सेस इंशाल्लाह। Okay, so I think the questions that we wanted to ask are over, and now we will go for the questions from the viewers. So I think we have to wait a bit. Let's see if there's any question. We will direct it to you, and then you can answer that. Okay, so we have a question from Aisha. She has said that how can women be empowered in Pakistan, keeping the cultural traditions and social norms? अच्छा, कल्चरल ट्रेडिशंस और जो नॉर्म्स हैं उनको आप तोड़ तो सकते हैं, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। सो अगेन इट कम्स विद द पेशेंस, थोड़ा सा सब्र से काम कीजिए, और अपने उसी कल्चर को, कल्चर में रहने वाले लोगों को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, उनको इतनी इज्जत दें कि वो रेसिप्रोकेट करें उस इज्जत को, जो प्यार और जो इज्जत आपने उनको दिया है वो इन रिटर्न आपको आपका काम करते हैं। We have to bring that social harmony by bringing up with a very good thought or respect for people. So I hope I should get your answer. If there's any wants to ask something from Ms. Tabinda, you can type in the comment section. अच्छा आयशा, जब तक हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आ जाते तब तक हम लोग डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स तो ऑलरेडी पाकिस्तान में अवेलेबल है, जहाँ पे खबर जा सकती हैं, अपने स्टार्टअप्स को लेके, अपने आइडियाज को लेके के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट दे कैन गेट देमसेल्व्स ट्रेन्ड ऑन न्यू मार्केट ट्रेंड्स जो आजकल चल रहे हैं, ई कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग्स है, स्किल्स है। तो आई थिंक इट्स गुड एक्चुअली कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म्स को भी डिस्कस करें लोगों के लिए यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल आई वुड नेम few of the NGOs in fact, or few of the companies here who are working on it. जैसे L'Oreal का एक इनिशिएटिव है सर्कल के नाम से, they are promoting good activities और initiatives, नेशन वाइड इनिशिएटिव चल रहे हैं, और खवातीन को इनेबल करने पे चीज़ों को जो है वो अच्छा प्रॉपरली लेके चल रहे हैं। सिमिलरली इनेबलर्स की अगर हम बात करते हैं, सिंस आई एम पार्ट ऑफ इनेबलर्स एज वेल, तो आई नो के हमारे तो यहाँ पर खवातीन के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है उनको ट्रेन करने के लिए। वी हैव फ्री सीरीज ऑफ वीडियोस फॉर देम एज वेल, जिसमें खवातीन सीख सकती हैं लेटेस्ट प्रोग्राम्स को, लेटेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए हम लोगों ने कॉमर्स से रेलिवेंट। सिमिलरली अगर हम इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं, तो रिसेंटली हम लोगों ने एक जॉइंट वेंचर भी किया है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के साथ, जिसमें हम लोग उनके जो बच्चे हैं, उनका जो यूथ है,
उसको रावलपिंडी, लाहौर और इनफैक्ट पंजाब के डिफरेंट इलाकों में हम लोग डिफरेंट शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप और ई कॉमर्स की ट्रेनिंग देंगे, बिकॉज दिस इज द न्यू मार्केट प्लेस। और अगर हम इसके बारे में लोगों को नहीं बताएंगे तो ये उनके साथ भी ज्यादती होगी। वी जस्ट वांट टू टेल पीपल कि वो कैसे अपने छोटे बिजनेस को कर सकते हैं और कैसे वो ई कॉमर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। Definitely, Definitely, because in fact, in fact, I think I think इसका platform भी है क्योंकि we मैं have एक computer science की student हूँ, so I'm very interested in coding and stuff. There was this company, I guess, Code for Girls, something like that. You might, yeah. मैं Code आपको for might, Girls, yeah. नहीं, कोड फॉर गर्ल्स नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में स्पेसिफिकली वो खवातीन के स्टार्टअप के लिए अलग से कोटा रखते हैं। Yes. इसी तरह से वीडो है जो काम कर रहे हैं इस पे। फिर खिदमत फाउंडेशन को आप देखिए, उनका खवातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो विडोज हैं उनके लिए उनके प्रोग्राम्स हैं कि उनको किस तरह हम इनेबल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट बेगिंग कल्चर के लोग मांगते रहे फकीरों की तरह, उनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे दें, उनको फैसिलिटेट कर दें और उसके बाद वो उसके ऊपर अपने बिजनेस करना शुरू कर दें, उनको सिखा दें कि बिजनेस करना कैसे है। Once a Exactly. woman knows a business model for one business, so she can do multiple other businesses as well. बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट मेरे नज़दीक जैसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फिजिकल लेवल पे करनी पड़ती हैं आपको। आजकल इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स एवरीवन हैज़ देम, एंड आई थिंक क्योंकि हम ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सेल कर चुके हैं पाकिस्तान में भी अब, तो इट इज़ इवन ईजियर देन गिविंग ट्यूशंस फॉर वुमेन कि वो अपने लैपटॉप या फ़ोन पे बैठकर कोई कोडिंग, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग इवन के फ्रीलांसिंग करें। आई थिंक दैट इज़ इवन मोर फेवरेबल जब हम पाकिस्तानी औरतों की बात औरतों की चाहती हूँ। मैंने इनेबलर्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, तो आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन पर्टिकुलरली। तो हम लोगों ने स्टार्ट कन्वेंशनल प्रोग्राम से नहीं किया, हमने 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के डिप्लोमा कोर्सेज फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन के लिए साथ स्टार्ट किए कि और साथ ही साथ उसको करियर पाथ दिए कि अगर कोई खातून हमारे पास आती है और हमसे ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इनसे रेलिवेंट कोई भी कोर्स करती है, उसको नौकरी दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी। उसने अगर बिजनेस करना है तो उसको बिजनेस करना सिखाना हमारी जिम्मेदारी। अगर उसने फ्रीलांसिंग करनी है तो उन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को उस बच्ची के पास लेके आना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर वो बच्ची बाहर जाके काम करना चाहती है तो उसकी फॉरेन स्टडी भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने ये 4 तरह के करियर पाथवेज भी दिए इसमें खवातीन। जबरदस्त जबरदस्त। I I guess we have guess 2 more questions. Okay, so I will so I will present this present. one. If a woman If a has woman to has choose between family values family or values working or outside her outside woman, her, what should she what do? should she do? Considering the family The values family doesn't values doesn't appreciate working appreciate outside the working home outside the home. to women. सो अगेन इज द सेम आंसर। अगर आप फैमिली वैल्यू देखिए, हम फैमिली वैल्यूज को कभी भी बुरा नहीं कह सकते। वो वैल्यूज हमारे बड़ों के तजर्बों से और उनकी वैल्यूज से हमारे पास आई हैं, तो वो आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। वो उनका तजर्बा है, वो उनकी उम्र है जो आपसे काफी ज्यादा है। तो वी कैन नॉट डिनाई, और इनफैक्ट वी कैन नॉट से दीज आर नॉट इफेक्टिव वैल्यूज। और अगर आपको लगता है कि वो इफेक्टिव वैल्यूज नहीं है तो यू हैव टू जस्टिफाई इट थ्रू योर वर्क। और उस वर्क को जस्टिफाई करने के लिए इफ द फैमिली डोंट अलाउ यू टू गो आउटसाइड, so there are certain other platforms, data entry के प्लेटफॉर्म्स है, वेब डेवलपमेंट के फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग फातिमा कि हम लोगों ने तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दी है खवातीन को कि वो आए, हमसे ई कॉमर्स सीख ले, हमसे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ले और घर बैठ के काम कर ले। उस फ्रीलांसिंग कम्युनिटी से कनेक्ट करवाना हमारी जिम्मेदारी है, हम आपको करवा देते हैं। एग्जैक्टली। यानी Exactly. कि यानी सिर्फ कि एक एक बहुत बैरियर जो नजर वैल्यू आ रहा है आ वो रहा है वो अवेयरनेस 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 की कमी की या फिर शायद या फिर मोटिवेशन शायद की कमी। मोटिवेशन की कमी। सो मोटिवेशन की तो नहीं है फातिमा। आजकल हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे यूथ है, हमारी खवातीन भी है, वो ना थोड़ी सी बगावत पे आ गए हुए हैं। एंड दैट इज नॉट राइट एक्चुअली। आप खानदानी वैल्यूज को गलत नहीं कह सकते, अपने बड़ों को, बाप को, दादा को, अम्मी को गलत नहीं कह सकते आप। और अगर आपको लगता है कि वो वाकई ही गलत है और मुझे बगावत करनी है तो जस्टिफाई करो फिर अपनी कामयाबी को। और जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? थ्रू योर हार्ड वर्क। नए स्किल को सीखो और फ्रीलांसिंग करो। जब कमाओगे और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर लोगे
तो उसके बाद जस्टिफाई करो, तुम्हारी बात सब मानेंगे। That's a very strong opinion, and it's to the point. बहुत सही बात किया आपने. So I think we don't have any more things, and we should go to the end. Miss Tabinda, any views, any things that are left with our saying, please go ahead. बिल्कुल कंक्लूड करते हैं हम इस चीज को। सबसे पहले तो ये कि जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है। अगर हम खवातीन की फलाह बहबूद की बात करें, आने वाले दिनों में भी अगर आप लोग चाहेंगे कि कोई भी खवातीन को हम फैसिलिटेशन दे सकें, मेरे तवज्जो से अगर आप देना चाहेंगी, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट उनकी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नेटवर्क एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके डिजिटल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबसाइट, एक पेज की वेबसाइट कैसे बन सकती है, इट्स जस्ट वन डे ट्रेनिंग फॉर देम। आई कैन बेटर टीच देम कि वो कैसे कर सकती हैं इस चीज के ऊपर काम, और अपनी वेबसाइट खुद बना सकती हैं। तो आई थिंक कि इस तरह के बेसिक स्किल्स खवातीन को अगर दे दिए जाए और उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी टैप करना सिखा दी जाए, तो दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन उससे पहले जो एडवाइस की आपने बात की है, आई थिंक कि सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज सेल्फ बिलीव। आपको अपने आप पे यकीन करना पड़ेगा। आपको अपने आप के अंदर एक इस तरह का स्किल डेवलप करना पड़ेगा जो किसी और में नहीं है, शायद जो कॉम्पिटेंसी किसी और की नहीं है, और अगर है तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी आपकी है। आपको अपनी बात को मनवाना और अपनी बात को कह के जिद में नहीं, आप लॉजिक से, प्रॉपर लॉजिक से उस बात पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना और लोगों को कन्विंस करना कि जो आप कह रही हो वो सही बात है, वो जरूरी है। और वो कब आती है? जब आपको अपने आप पे यकीन होता है, और अपने आप पे भी यकीन आपको तब होता है जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपको यकीन होता है और स्ट्रांग होता है आपका ईमान। तो ईमान स्ट्रांग करें, ईमान को स्ट्रांग करने के बाद अपने आप पे बिलीव करें, बाकी सब चीजें अल्लाह ताला रास्ते आपके लिए खुद ही बना देगा। और वो रास्ते बने हुए हैं बेसिक, जब हम पैदा होते हैं वो रास्ते अल्लाह ताला ने बना के भेजे होते हैं हमारे लिए, सिर्फ हमने मेहनत से उसके ऊपर चलना है। एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स हैव टू यूज देयर अकल दानाई। तो हम लोगों ने जानवर तो नहीं बनना कि खाया पिया सोया और चले गए, हमें तो इंसान बनना है और एक मकसद को अचीव करना है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। That was such wholesome statement. And this brings us to the end of the webinar. And I am so thankful to Ms. Tabinda that you joined us today. And honestly, I think this is one of my favorite webinars so far. And we will meet you all, inshallah, next week with another topic. And thank you, Ms. Tabinda. Thank you all of the viewers that are joining, all the people who commented and asked questions to Ms. Tabinda. Thank you very much. Thank you. Take care. Allah Hafiz.